morning students. Chapter number 16 quadrilateral. We were discussing exercise 16.2 till question number 12 we have discussed. Now we have to start from question number 13. Now in question number 13 what you have to do, you have to prove that the parallelogram is a rectangle if their diagonals are of equal length. It means they have given you in the question that they have given you parallelogram और कह रहे पैरेललोग्राम में क्या अगर डायगनल्स को इक्वल कर देते वो रेक्टेंगल फॉर्म कर लेता है. इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इफ द डायगनल्स आर इक्वल. इट मीन्स इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ए पैरेललोग्राम इज देयर एंड द डायगनल्स आर इक्वल. Getting my point? These two things they have given. I have made the figure for my convenience. Okay, you have to make the figure. ठीक है, I have let that ABCD is a parallelogram and their diagonals are equal. ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है कि ABCD आपका क्या है, पैरेललोग्राम है और उनके दोनों डायगनल्स बराबर दे रखे हैं. तब हमको प्रूफ करना है कि तब बताइए कि ABCD आपका रेक्टेंगल है कि नहीं. और रेक्टेंगल के लिए हम लोग मेजर चीज़ क्या प्रूफ करते हैं, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर हमने सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर प्रूफ कर दिए मतलब गिवन पैरेललोग्राम विल बी अ रेक्टेंगल. इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि ये ना दिया होता कि इनके डायगोनल्स बराबर है तो हमको प्रूफ करने में थोड़ा दिक्कत होती. पर इन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि पैरेललोग्राम के हम डायगोनल्स को बराबर कर देते हैं वो रेक्टेंगल फॉर्म कर लेगा. पर हाउ यू हैव टू प्रूव दैट. Getting my point? I have made the figure. I have made the two diagonals AC and BD. Opposite sides are equal in a parallelogram. This property we know. Now we have to prove the congruency in the given two figure that we will take on our own. Now which two triangles? Next heading is proof. First heading was given. क्या given था? Next heading was to prove. हमको proof क्या करना था? Now we have to prove the congruency. For proving that each angle is equal to 90 degree. For proving that the given figure is a rectangle, we have to prove that all the angles of a rectangle is equal to 90 degree. Then the given parallelogram will be a rectangle. Now how many we have to take the two triangles for proving the congruency. We are taking DAB and CBA. Let us see DAB. What is DAB? DAB. How many triangles we are taking? We are taking DAB. This is DAB and CAB. These two triangles we are taking. We are taking triangle DAB and CBA. Two triangles. This triangle we are taking and this triangle we are taking. Now I am making the figure here, rough figure here. We are taking this and this. ठीक है, ऊपर ज्वाइन नहीं किया है. ऊपर ज्वाइन करेंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा. बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने दो ट्राइंगल कौन से लिए हैं. वी हैव टेकन DAB and CAB. One triangle is this and one triangle is this. These two triangles we have taken. See, we all know that opposite sides of a parallelogram are equal. DA will be equal to BC. I have written the reason. Opposite sides of parallelogram are equal. Next, this line is common. इस लाइन पे आपका एक ट्रायंगल ये फॉर्म हुआ, एक ट्रायंगल ये फॉर्म हुआ है. तो AB line is common. I have written common. This line is coming in both the triangles. Now next, AC and DB. This is already given in the question कि दोनों डायगोनल्स आपस में कैसे बराबर हैं. ये आपका AC है और BD है, दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर है. तो ये भी आपका साइड है, ये भी आपका साइड है, ये भी आपका साइड है. तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपल एस प्रॉपर्टी. ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBA बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी. इसका मतलब हम उसके बाद ये एंगल A इज इक्वल टू, जैसे हम दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर ली है, वो तीनों चीज़ें आपस में मिल गई हैं. उसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद हमें ये पता होता है जो रिमेनिंग हम पार्ट्स रिमेनिंग एंगल्स बचे होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स बचे होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप इक्वल हो जाएंगे. अगर आप इन तीनों ट्रायंगल की बात करेंगे, 6 चीज़ें दिख रही थी, 3 साइड 3 एंगल दिख रहे थे. 3 साइड तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए. बाकी 3 एंगल्स ही तो बचे. वो तीनों एंगल्स ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद बराबर हो जाएंगे. किससे बराबर हो जाएंगे? बाय CPCT. It means angle A is equal to angle B by CPCT. Corresponding parts of congruent triangles are equal. जो बचे हुए पार्ट्स है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद. अब हमने ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए. अगर मान लीजिए ये आपका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये आपका फिगर था, ठीक है, हमने कह दिया ये पूरा एंगल आपका A और B इक्वल है. पर हमको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. वी ऑल नो दैट अपोजिट साइड्स आर
पैरेलल एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल। एडजेसेंट एंगल, अगल बगल के एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। दिस रीजन वी नो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इट मीन्स एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। रीजन विल बी को इंटीरियर एंगल। इट मीन्स अब हम ये पहले ही CPCT से बता चुके हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। बी को हम एंगल ए से रिप्लेस कर सकते हैं ऊपर का यूज़ करके। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 180/2 एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल ए आपका 90 आ गया तो एंगल बी भी तो 90 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमने पूरा ऊपर पैरेललोग्राम लिया, ऊपर के 2 ऐसे ट्रायंगल लिए होते हैं, तो इन दोनों भी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लेते, तो आपका एंगल सी और एंगल डी इक्वल प्रूफ हो जाता। फिर हम एडजेसेंट एंगल से एंगल सी प्लस एंगल डी लिख सकते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है, अभी हमने क्या किया है, नीचे वाले 2 ट्रायंगल लिए, हम ऊपर वाला बेस मान के ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी तो यूज़ कर सकते थे। हम एंगल सी और डी को भी तो इक्वल प्रूफ कर सकते थे। फिर दोनों एडजेसेंट एंगल का एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इन दोनों का सम करके एंगल सी और डी भी तो 90 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। वरना सिंपल सी बात है, जैसे ही हमको एंगल ए मिल गया, एंगल बी मिल गया। आई एम मेकिंग द पैरेललोग्राम, जस्ट हैव अ लुक, दिस इज़ अ फिगर, ठीक है। अगर ये एंगल ए आपका, एंगल ए और एंगल बी, ये 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, और सी और डी हमको फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, दे हैव गिवन यू इन द क्वेश्चन। इट मीन्स B इज इक्वल टू C, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो C भी 90 हो गया। फिर B अगर 90 है तो D भी 90 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। इफ A इज इक्वल टू 90 देन D विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90। इसका मतलब चारों एंगल इसके 90 डिग्री आ गए। इसका मतलब है कि हमारा ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। Similarly, we can prove congruency in triangle ADC and BCD. Then angle C will be equal to angle D equal to 90 डिग्री। एक तरीका ये है कि दोबारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करें, दूसरा तरीका ये है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। अगर A और B हमको मिल गया, इसका मतलब D भी फाइंड कर लेंगे, C भी फाइंड कर लेंगे, हमारा चारों एंगल 90 के बराबर हो जाएंगे और ABCD हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। This is also a very lengthy question. Now in question number 14, in a parallelogram PQRS, T is a midpoint of PQ, U is a midpoint of SR. Prove that PTRU is a parallelogram. Now what they have given? They have given PQRS is a parallelogram, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं U जो है मिड पॉइंट है, मतलब दिस इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ SR, इसका मतलब इतना साइड इतने साइड के बराबर होगा। फिर बोला है T इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ PQ, इसका मतलब PT विल बी इक्वल टू TQ। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट PTRU इज़ अ पैरेललोग्राम। मतलब हम इसके अपोजिट साइड्स और इक्वल दिखा दें तो हमें पैरेललोग्राम अपने आप पता चल जाएगा कि PTRU इज़ अ पैरेललोग्राम। नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, पैरेललोग्राम PQRS गिवन इन द क्वेश्चन, and T is a midpoint of PQ is given in the question, and U is a midpoint of SR, it is given in the question. What you have to prove? You have to prove that PTRU is a parallelogram. This you have to prove. Now we will take 2 triangles and we will prove the congruency. Which triangle we have to take? We have to take these 2 triangles, this and this one. Now look here, SP will be equal to RQ, opposite sides of a parallelogram. अब ये एंगल S will be equal to angle Q, opposite angles of a parallelogram are equal. Now SU will be equal to TQ. हमको पता है SR पूरा PQ के बराबर है। हमने बोला T और U मिड पॉइंट है, तो उसका हाफ पोर्शन भी तो आपस में बराबर होगा। जब पूरा SR आपका PQ के बराबर है और U और 2 ये आपका मिड पॉइंट है, तो SU आपका TQ के बराबर होगा कि नहीं होगा? आई हैव शोन यू है। नाउ वी हैव टेकन 2 triangle SPU and RTQ. We have taken 2 triangles. Now first we have taken the opposite sides of a parallelogram are equal. We have taken SP is equal to RQ. Then we have taken angle S is equal to angle Q. It means these 2 angles are equal. Opposite angles of a parallelogram are equal. Now we have written SU is equal to TQ. Reason why opposite sides are equal, क्योंकि जब पूरा साइड आपस में बराबर है तो उसका आधा साइड भी तो बराबर होगा, क्योंकि U और T आपस में मिड पॉइंट है।
ठीक है, बीच के पॉइंट है जो उस पूरी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. इट मीन्स एस यू विल बी इक्वल टू टी क्यू. नाउ एस आर इज इक्वल टू, आई हैव रिटन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू. एस आर को हम क्या लिख सकते हैं, एस यू प्लस यू आर. अगर एस आर पूरा ले रखे तो उसको हम तोड़ के लिख सकते हैं एस यू प्लस यू आर. इफ़ वी आर टेकिंग पी क्यू होल वी कैन राइट एज पी टी प्लस टी क्यू. सी आई हैव रिटन इट हेयर लाइक दिस. अब आपका ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर, पर ये पूरा पूरा आपस में बराबर है. मतलब हमको एस यू और टी क्यू चाहिए तो हम यू आर और पी टी को कट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों भी आपस में बराबर ही. जब सामने सामने वाला पूरा पूरा लाइन बराबर है तो उसका आधा आधा पोर्शन भी तो चारों बराबर होगा. एस यू विल बी इक्वल टू यू आर इक्वल टू पी टी इक्वल टू टी क्यू. हमको चाहिए क्या, एस यू और टी क्यू चाहिए था, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं. एस यू विल बी इक्वल टू पी टी क्यू. नाउ टर्न द पेज. See, this is the complete solution. Here I am doing एस आर इज इक्वल टू पी क्यू. एस आर को हमने एस यू प्लस यू आर लिख लिया, पी क्यू को हमने पी टी प्लस टी क्यू लिख दिया है. ठीक है, देन दीज टू विल बी कैंसल आउट. तो ये एस यू इक्वल टू टी क्यू मिलेगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. Then after that we have proved the congruency among these two triangle by SAS congruency. See, this is side, this is angle, this is side, this is side, this is angle, this is side. It means SAS. By SA congruency we have proved that these two triangles are congruent. तो हम जो अब ये जो आपको ये साइड दिख रहा है PU and TR, ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे बाय CPCT से. इसको हमने बाय CPCT से इक्वल प्रूफ कर दिया है. एंड वी ऑल नो दैट अगर ये वाला पोर्शन इसके बराबर है तो रिमेनिंग पोर्शन भी तो यू आर विल बी इक्वल टू पी टी. ये वाला पोर्शन भी तो बराबर होगा, मतलब ये तो हमने प्रूफ कर दिया पोई साइड्स आर इक्वल बाय CPCT. ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही था पी टी इज इक्वल टू पी यू आर, क्योंकि जब पूरा पूरा एक दूसरे को बराबर है तो उसका हाफ हाफ भी तो इसके बराबर होगा. पी टी इज इक्वल टू यू आर, इट मीन्स इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल हमने प्रूफ कर दिया है. इट मीन्स पी टी यू आर इज अ parallelogram, hence proof. Now in the next video we will discuss question number 16 and 17. Thank you class.